Good morning, students. Today, I will start with ninth standard, subject social science, and chapter I had taken for today's video, that is First World War and Russian Revolution. This chapter is totally related to history, and in today's video, I am explaining the chapter exercise question answers. Why I am doing so? मैं ये क्यों कर रही हूँ बच्चों? क्योंकि ये चैप्टर हिस्ट्री का है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है टू लर्न इट आउट, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ब्रीफ और डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न इट आउट बिकॉज ऑफ द लेंथीनेस. टॉपिक्स आर नॉट ईजी टू लर्न इट आउट. For that purpose, I am explaining this question answers in a short, precise form. Okay? जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आज एक्सरसाइज में से, वो है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको प्रोसेस बतानी है कि कैसे कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड हुई थी. कॉलोनिज्म वाज एस्टैब्लिश इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स यू हैव टू राइट अंडर दिस क्वेश्चन while discussion. Okay, and what you understand. So let's begin. First I will read all the points and then I will explain you. Okay. Establishment of colonies in West Europe countries. First point, the Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. They did not spare even their neighboring countries. Spain had taken control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. Portugal came under the rule of the Spanish king because of his blood relation. Italy and Germany states became the victim of the greed of the France and Austria. When European powers were like tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. These are the points which are added in establishment of colonies in West Europe. Now we will talk about colonialism in Asia. There are only 2 points. First, after strengthening its grip over India, England expands its empire to Sri Lanka, Malaysia, Singapore and Myanmar. Second point, England entered China also in imposing trade of opium upon China. This led Opium War. Third, colonialism in Africa. In that you have 4 points. The Dutch established its colonies for the first time at the end of the 15th century in South Africa. England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established his rule. After the end of the Berlin Conference, the African terrorists were divided among the European nations. These are the 4 points. Okay. Now I am explaining. As you know, this explanation is very short in a point wise. Let me explain you. First point of the West European colonialism, that explain कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको क्या करना था, अपना कंट्रोल एक्सपैंड करना था, कंट्री को बड़ा करना था, लार्ज करना था, प्रोटेक्टेड करना था. तो उन्होंने एशिया और अफ्रीका को अपने टारगेट्स बनाए और उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी छोड़ा नहीं. दे नॉट इवन लीव द नेबरिंग कंट्रीज़. दे हैड
taken the power, the control of the neighbor countries too. Second, स्पेन ने अपना कंट्रोल नेदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग पे हासिल किया. पोर्टुगल जो था वो किसके अंडर में गया? स्पेनिश किंग के. क्यों? क्योंकि उनके दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन था. इटली, जर्मनी विक्टिम बने, टारगेट हुए किसके? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के. क्योंकि उन दोनों के बीच, उन दोनों को ग्रीडीनेस था, उनको अपने आप पावर्स को बढ़ाना था और उस चीज़ की उनके अंदर लालच थी. और उन दोनों ने किसको टारगेट बनाया? इटली और जर्मनी को. ठीक है, दोनों स्टेट्स को. सेकेंड, यूरोपियन पावर्स और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए एशिया और अफ्रीका में. और उस टाइम पीरियड पे यूरोपियन नेशन, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशंस थे बच्चों जो फ्री हुए थे. एंड फॉलोइंग एंड हाउ आफ्टर दे बिकेम फ्री दे हैड फॉलो द इंग्लैंड. उन्होंने किसको अपना इंस्पिरेशन बनाया? इंग्लैंड को. और इंग्लैंड क्या कर रहा था? वो कंट्रोल कर रहा था, एक्सपांड कर रहा था, कॉलोनिज्म फैला रहा था. उसको देख के बहुत सारे ऐसे एफ्रो एशियन नेशन ने भी, जैसा वो इंग्लैंड कर रहा था वैसे ही फुटस्टेप्स के ऊपर अपना डायरेक्शन और वर्कआउट करना शुरू किया. एंड दिस वे कॉलोनीज वेयर एक्सपैंडेड, कॉलोनिज्म एक्सपैंड हुआ, एस्टैब्लिश हुआ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एशिया, हाउ दैट वाज एक्सपैंड इन एशिया. एज यू नो, इंडिया कम्स इन एशिया. ठीक है, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? एशिया में. और वी आर द पार्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज. ठीक है, एज यू नो, इंग्लैंड ने हम पे कंट्रोल किया. दे हैड रूल आउट इन इंडिया. हमारा उनका पूरा कंट्रोल हम पे हो चुका था. उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया एम्पायर श्रीलंका में, म्यांमार में, सिंगापुर में और मलेशिया ने में भी. सेकेंड, इंग्लैंड ने चाइना को भी टारगेट किया. देयर ऑल्सो दे हैड डन द ट्रेड. ओके, इम्पोजिंग द ट्रेड ऑफ ओपियम. ठीक है, अपॉन चाइना. उन्होंने उनके साथ बिजनेस टर्न अप के टर्म पे वर्कआउट किया और ट्रेड किया. किसके ऊपर? ओपियम के ऊपर. ओपियम क्या था? वन ऑफ द ड्रग एडिक्ट है, ड्रग है. ठीक है, और उसके टर्म पे वो ट्रेड करते थे और जिसके टर्म्स पे इम्पोज द ट्रेड. ओके, दैट यू हैव टू डू द ट्रेड विथ अस एंड दैट चाइना डजंट वांट टू फॉलो. ठीक है, और इस टर्म्स पे ओपियम वॉर दोनों के बीच में स्टार्टअप हुई. दैट वाज डन and at last China lost against the England. This is the expansion which was done under Asia. After that, colonies in Africa. How the colonies created in Africa. जो फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कॉलोनी का वो हुआ था डच के साथ. और वो फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका. डच ने अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की फर्स्ट टाइम. ठीक है, 15th सेंचुरी में, और वो उसने इन साउथ अफ्रीका में की. सेकेंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने एस्टैब्लिश की कॉलोनीज कैप और अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में. किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम, जिसने कैप्चर किया वास्ट प्रोविंस यानी बहुत बड़ा रीजन कॉन्गो का, और वहाँ पे अपने आप को रूल को एस्टैब्लिश किया. आफ्टर द एंड ऑफ द बर्लिन कॉन्फ्रेंस, बर्लिन के साथ उनकी एक एंड ऑफ द बर्लिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी बर्लिन में. और वो बर्लिन कॉन्फ्रेंस के एंड मोमेंट पे अफ्रीकन टेरिटरीज जो थी वो डिवाइड हो गई थी पूरी तरह से यूरोपियन कंट्रीज में. दिस वॉज द पर्टिकुलर कॉलोनिज्म विच वॉज स्प्रेड इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. एंड दिस आर द थिंग्स विच हैपन इन ओवर देयर ड्यूरिंग द प्रोसेस of establishment of colonies. Okay, and in a short precise way I had explained in this video, dear students. I hope you understand and you can go through with it. You can understand also very well. Okay, in next video I will explain you another questions. Okay, have a nice day. Bye. Good day.